وبرکاتہ۔ سر میں نا وضو کر لوں ذرا، تو آپ لوگ اتنی دیر میں کوئی بات کر لیجیے جو بات آپ کر رہے تھے، تو بس مجھے 2 منٹ چاہیے، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آیت نمبر 90 اور 91 کی تفسیر اکٹھی ہوگی، اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا وقت اگر ہمارا مزید ہوا تو انشاءاللہ ایک آیت اور ہم ساتھ اس کے شامل کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 90۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یا وہ جو کفرو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کر دیا، بعد ایمانہم، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے، مطلب ایمان لانے کے بعد جو لوگ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا، ثم پھر، ازدادوا ہم زیادہ لفظ ایک استعمال کرتے ہیں اردو میں، تو اس کا مادہ بھی یہی ہے، تو ثم ازدادوا پھر وہ زیادہ ہو گئے، بڑھتے گئے، انہوں نے بڑھا لیا، کفرن کفر کو، اور وہ زیادہ ہوتے گئے کفر میں، کہ جو لوگ پہلے ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے بعد وہ دوبارہ سے کافر ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنے کفر کو زیادہ کر لیا، اس کو بڑھاوا دے دیا، لن ہرگز نہیں تقبلا قبول کیا جائے گا یا قبول کیا جائے گی، توبہ ہم ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ استغفر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور انسان اس پہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر لے کہ وہ غلطی بھی کرے، ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے اور پھر کفر میں بڑھتا ہی چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم الضالون، جو کہ گمراہ ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ضالین اور ضالون یہ دونوں دال کے جمع ہیں، دال کہتے ہیں جو گمراہ ہو جائے اس کو، تو یہ کیا ہے؟ وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، وہ یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ جی بنت حاصل آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں بھائی آپ بولیے۔ ہاتھ اصل میں آپ کا ریس تھا تو میں اس لیے جی دوبارہ سے جی وہ شاید کو پہلے پڑھتے ہیں۔ کیا تھا کچھ بات کرنی تھی اس لیے، لیکن ابھی آپ پڑھائیے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ دوبارہ سے آیت کو پڑھتے ہیں۔ انا، بے شک، الذین، وہ جو کافر ہو گئے، کفر کیا جنہوں نے، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے، ثم ازدادوا پھر وہ زیادہ ہو گئے، کفر میں، پھر انہوں نے زیادہ کر لیا اپنے کفر کو، لن ہرگز نہیں تقبلا قبول کیا جائے گی یا کیا جائے گا، توبہ ہم ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم الضالون، گمراہ، راستہ بھولے ہوئے۔ آیت نمبر 91۔ ان الذین، بے شک جو کافر ہو گئے، وماتو، اب دیکھیں پچھلی آیت میں یہ فرمایا کہ جو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور وہ کفر میں زیادہ ہی بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے، وماتو، اور مر گئے، وہم، اور وہ کفار، کافر ہی تھے، جب وہ مرے تو اس وقت وہ کافر ہی تھے، فلن، پس ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، من سے، احدہم ان میں سے کسی سے، ان میں سے کسی، احد کوئی بھی ایک، ہم ان میں سے،
तो मिन अहदिहिम उनमें से कोई एक, यानी किसी से भी कबूल नहीं किया, किसी से भी कबूल नहीं किया जाएगा। मिल उल अर्द, मिल मतलब फुल, जिसे हम कहते हैं फुल ऑफ, बहुत ज्यादा भरा हुआ। मिल उल अर्दी भरा हुआ, अल अर्दी जमीन, ज़हबन सोने की, मतलब जमीन भर सोना भी अगर वो दे दे तो उनसे वो भी कबूल नहीं किया जाएगा। अब अल्लाह ताला को तो सोने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब वो लोग जो हैं वो एक मिसाल दी जा रही है कि वो अगर अपने छुड़वाने के लिए अगर वो जमीन पूरी जो है ना इतना सोना भी दे देंगे अल्लाह के रास्ते में, वो ये भी खर्च कर दे, तो फिर भी उनसे उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। वाला बिफ्तदा वलऊ, देखिए ये जो लफ्ज है ना वाला विफ्तदा, ये बेसिकली है वलऊ, और वाव को फा के साथ जोड़ने के लिए वाव के नीचे जेर आ जाएगी, तो वाला विफ्तदा, और अगर इफ्तदा बदला दे दे, इफ्तदा बदला दे दे, बिही इसके साथ, कि मतलब अगर वो इसके बदले में अगर सोना भी जमीन पूरी के बराबर दे देंगे फिदिया के तौर पर कि हमारी जान छूट जाए, तो ऐसा नहीं हो सकेगा उनके लिए, उनकी जान नहीं छूटेगी। उलाइका यही हैं, यही लोग हैं, लहुम वास्ते उनके, अजाबुन अजाब है, अलीमुन दर्दनाक, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। वमा और नहीं लहुम उनके लिए, ये माँ जो है ये यहाँ पर नहीं के लिए आ रहा है, और नहीं लहुम उनके लिए, मिन नासिरीन, मिन से नासिरीन, नासिर की जमा है, तो नासिर कहते हैं मददगार को, तो नासिरीन ज्यादा मददगार, और इन लोगों के लिए कोई मददगार भी नहीं होंगे। दोबारा से पढ़ते हैं इस आयत को, नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, व मातू और वो मर गए, व हम कुफ्फार और वो काफिर ही थे, फलन पस हरगिज नहीं, युकबला कबूल किया जाएगा, मिन अहदिहिम मिलउल अर्दी, मिन अहदिहिम उनमें से किसी से, मिलउल अर्दी जमीन बर ज़हबन सोना, वाला विफ्तदा और अगर वो फिदिया दे दें बेही या बदला दे दें बेही इसका, जमीन पर सोना के बराबर भी अगर वो बदला दे दें तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। उलाइका ये ऐसे हैं, लहुम उनके लिए अजाबुन अलीमुन दर्दनाक अजाब होगा, वमा लहुम मिन नासिरीन और नहीं है उनके लिए कोई भी मददगार, तो नहीं होगा उनके लिए कोई भी मददगार। अच्छा अभी इन दो आयत की तफसीर की तरफ चलते हैं। इसमें ये बात फरमाई गई कि वो कौन से लोग हैं कि जिनकी तौबा कबूल नहीं होती, तो ये वो लोग हैं जो उन तमाम जराइम का इर्तकाब करके, जिनका यहाँ पर जिक्र हो चुका, ईमान के बाद वो कुफर में मुब्तला हुए, फिर इस कुफर पर वो ज्यादा से ज्यादा चढ़ते गए, मतलब लेयर बाय लेयर वो इस कुफर पे ज्यादा होते गए, कुफर की एक लेयर उबूर की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब हर चीज का इनकार करते चले गए, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को छोड़ते चले गए, उसका मजाक उड़ाते रहे। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ तक कि उनके ऊपर वो वक्त आ गया कि जब उनकी जिंदगी खत्म होने लगी तो उन्होंने क्या किया, जुबान से कहने लगे कि हमारी तौबा, हमारी तौबा, जब देख लिया कि अब वक्त वापसी हो गया है, उस वक्त उन्होंने तौबा तौबा करनी शुरू कर दी, ना अपने जराइम की उन्होंने इस्लाह की, क्योंकि पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह फरमाता है कि अगर गलती हो जाती है और इंसान उस पर तौबा करता है और अपनी इस्लाह कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाने वाला है। लेकिन यहाँ ये है कि इन लोगों ने तौबा की ही नहीं, अपनी इस्लाह की ही नहीं, कुफ्र की हालत में ये लोग जो हैं ये अपने कुफ्र को बढ़ाते चले गए, और बिल्कुल जब वक्त आखिरी आ गया उस वक्त इन्होंने कहा कि अब तो हमारी तौबा, जैसे फिरौन ने कहा था, तो फिर क्या उसने जब डूबने लगा तो उसने कहा कि अब मैं ईमान लाता हूँ रब्बे मूसा और हारून पे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब तेरे ईमान का कोई तुझे फायदा नहीं है, क्योंकि अब तूने अपना आखिरी वक्त देख कर अब तो ईमान ला रहा है, अब कोई तेरे पास वक्त ही नहीं है, वक्त मुकम्मल हो चुका है। तो अब क्या है कि इन्होंने अपनी सिर्फ जुबान से तौबा की, अपने जो जुर्म इन्होंने किए उनकी इस्लाह ही नहीं की, और जो अपनी हक पुशियां इन्होंने की थी,
जो हक को छुपाते थे ये, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और अहले ईमान के सामने, तो उसका जो है वो इजहार और एतराफ भी इन्होंने नहीं किया कि हमसे वो गलतियां हुई थी। ना अल्लाह की राह में उन्होंने कोई खर्च किया, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और नुसरत से, आपकी मदद से, आपके दीन में आपका हाथ बिठाकर दीन के कामों में उनकी मदद करके, ना ही इन लोगों ने अपने गुनाहों को धोने की कोशिश की, बल्कि जैसा कि कुरान में इरशाद है, वो इस गलत आरजू में मर गए कि सयगफरु लना, कि अनकरीब अल्लाह हमें माफ कर देगा, हमारी सारी गलतियां माफ कर देगा। बस यही आरजू उनके दिल में थी। ये नहीं कि किसी उम्मीद के साथ इन्होंने ये कहा था कि अल्लाह माफ कर देगा। ये उन्होंने कहा कि बस ठीक है, अल्लाह माफ करने वाला है, हम जो काम भी करते जाए वो कर देगा माफ। तो ये अपने आप को एक इत्तिफल तसल्ली वो लोग देते रहे। तो कुरान ने यहाँ वाज़ेह फरमा दिया कि जो लोग इस किस्म की तमाए खाम में मुब्तला हैं, ना उनकी ये तौबा तौबा है, ना अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा को पजीराई फरमाएगा, पजीराई बख्शेगा। इसी तरह का मामला उन लोगों का है जो अगली आयत में बयान फरमाया गया कि जो लोग कुफर में मुब्तला हो गए और उसी हालत कुफर में मर गए, फरमाया कि इस तरह के लोग जमीन के बराबर सोना भी अपने आप को अजाब इलाही से बचाने के लिए फिदिया में दे दें तो भी कबूल नहीं होगा। अब ये जो इसलूब बयान फरमाया है, महज उनकी निजात के अदम इम्कान की ताबीर के लिए इरशाद फरमाया है। ये जो मिसाल दी है कि सोने के बराबर भी वो फिदिया दे दें, तो मतलब ये इतनी बड़ी बात है, इसको मामूली ना समझा जाए। जो अमल इन लोगों ने किया है कि इन्होंने कुफ्र किया, ईमान के बाद ये कुफ्र अख्तियार कर गए और इसी हालत में फिर मर गए, तौबा ही नहीं की, अब इनके बचने का कोई इम्कान नहीं है। तो ये सिर्फ इसका जो इसलूब बयान है, निजात का जो अदम इम्कान है उसके लिए इख्तियार फरमाया गया है। वरना आखिरत में ना किसी के पास फिदिया में देने के लिए कुछ होगा, ना आखिरत इस किस्म के लेन देन की कोई जगह है, क्योंकि हम पहले पढ़ा है ना, इससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन में, सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा कि उस दिन में कोई बदला किसी से नहीं लिया जाएगा। बदले में कोई चीज किसी की जान छुड़ाने के लिए कोई चीज देकर उसकी जान छुड़ा दी जाए, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। कोई ट्रेड नहीं हो सकेगी, कोई फिदिया किसी के लिए किसी काम नहीं आएगा। वमा लहुम मिन नासिरीन, कि इन लोगों की कि अपने कि इनका एक और भी आरजू है, खाम आरजू है, उसकी नफी फरमाई गई है कि जो ये अपने बुजुर्ग और असलाफ की शफात की रखते हैं कि हमारी शफात हो जाएगी, इस हालत में भी हमारी शफात, तो फरमाया कि आखिरत में इनका कोई मददगार नहीं होगा। शफात उनकी होगी जिन लोगों ने अपने दिल के अंदर ईमान लेकर वो लोग दुनिया से गए होंगे। ठीक, गुनाह इंसान से हो जाता है, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन इंसान कुफ्र अख्तियार ना करे और फिर कुफ्र में बढ़ता ही चला ना जाए, इतना ना बढ़ जाए कि फिर उसको तौबा करने का मौका भी ना मिले। तो ये चीज मुकम्मल तौर पर इंसान के जो कुफ्र है, ये इंसान के मुकम्मल घाटे का सौदा है। तो ये मजमून सूरह बकरा में भी पहले गुजर चुका है और इसके बारे में बात हो चुकी है कि जैसे फरमाया कि तर्जुमा कर देता हूँ सिर्फ कि बेशक जो लोग इन वाज़े आयात, सूरह बकरा में ये था, आयत नंबर 109 में, 160 में, 161 में और फिर 162 में, कि बेशक जो लोग इन वाज़े आयात और इस हिदायत को छुपाते हैं जो हमने उतारी है बाद इसके कि हमने इसको अपनी किताब में लोगों के लिए अच्छी तरह वाज़े कर दिया है, वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह की आयतों को छुपाने वालों के ऊपर अल्लाह ने फरमाया कि इन लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत है और उन पर लानत करने वाले भी लानत करेंगे। अलबत्ता वो लोग इससे मुस्तस्ना हैं जो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें और खोल दें छुपाई हुई बातों को। यही लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल करूंगा और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और इसी हालत कुफ्र में मर गए, उन पर अल्लाह की, उसके फरिश्तों की और सारे लोगों की लानत है, उसमें हमेशा रहेंगे, ना उनका अजाब हल्का किया जाएगा और ना उनको मोहलत ही दी जाएगी। तो हमने देखा कि यही ये मिलता जुलता मजमून हमने कल की आयात में भी पढ़ा था कि ऐसे लोगों के ऊपर लानत फरमा दी गई। तो यहाँ पर इन दो आयात की तफसीर मुकम्मल हो गई। अगर
میرا خیال ہے وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، تو کل انشاءاللہ ہم اس سے اگلی آیات جو ہیں ان کا انشاءاللہ چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بھائی، بہت شکریہ. درست فرمایا آپ نے. میں ابھی جو سرور انکل کا سوال ہے شکیل بھائی، اس کا جواب بھی دیں اور پھر اس کے ساتھ حدیث بیان کریں اور ساتھ میں ہی دعا بھی کوئی کروائیں گے. تو شکیل بھائی کو میں مائک دے رہی ہوں، آپ پلیز مائک ایکسیپٹ کریں.